इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान किसान यूनियन अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी। केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सियाटिका व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज से छुटकारा पाएं। पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है, पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। जीटी रोड पर आपको ट्रैक्टर ट्रालियां कम नज़र आ रही होंगी, क्योंकि 26 जनवरी के मद्देनज़र जो किसान संगठनों का आह्वान था कि परेड निकाली है, तब ट्रैक्टर ट्राली ज़्यादा दिखा करते थे। लेकिन अब लोग अपनी निजी गाड़ी में सवार होकर दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पंजाब से कुछ परिवार जो है अपने पूरे परिवार पूरी फैमिलियों के साथ मिलकर अभी दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से हो आप? सर मैं करनाल से हूँ। करनाल से हो ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? हम मोहाली से हैं जी। मतलब पंजाब हरियाणा इकट्ठा हो? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आज 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਓ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਪਵਾਓ, ਜੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਾਓ, ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਗਏ ਆ। ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਬੀਇੰਗ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਰੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ ਉਰੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਸ ਬਣਾਏ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬਟ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈਲਪ ਅਸ ਇਨ ਦਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਥੀਸ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਔਰ ਠੋਕ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋਦੀ। ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਢੀਠ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਤलब ਦੇਖੋ बस ईगो है जी इन्हों दी। हाँ ईगो है, और की है। इंडिया फार्मर्स आर सेइंग these black laws are not good for them। एरोगेंस हो गई है ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, rather than showing to the other world ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, he is trying to show them ਮੇਰਾ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ। this is total arrogance, nothing else। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੇ farmers are on the roads throughout India and still he is saying ਇਹ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਆਰ ਫਾਈਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਹਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੁਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠੇ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਫॉर ਲਾਸਟ 6 ਇਅਰਸ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, GDP ਲੱਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ NRC CCA ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੈਵ ਦਾ ਵਨ ਕਨਸੈਪਟ, ਲੜਾਓ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੂਲ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਟ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਭੁੱਖਾ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਦਾ ਰੂਲ ਦੇਖਣਾ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ BJP ਵਾਲੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਮ ਗੋਨਾ ਸੇ, ਜਿੰਨੇ BJP ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ देयर ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਅਪ ਟੂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਲੇ। हाँ। ये जो लोग हैं ना, कॉन्स्पिरेसी खेलते हैं, मतलब जात पात के और धर्म के नाम पे बांटते हैं लोगों को। इनको तो ऐसे सिस्टम से निकालना पड़ेगा, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट बनाई थी लोगों ने, ऐसे इनको निकालना पड़ेगा। आम आदमी को खड़ा हो गए, ये बता दिया। और जो खालिस्तान वाली बात है,
ये तो अब पता क्या बात है, जो नेशनल मीडिया लोग जो देखते हैं ना, जो देखते हैं वो अंधभगत हो गए। उनको ये लगता है कि ये सच सच बोल रहे हैं, जबकि वो जो है ना बिकाऊ है, सारा टोटल बिकाऊ है। मैंने तो अपने घर से जो है ना उसकी सब्सक्रिप्शन बंद करवा दी है, टोटल जो नेशनल मीडिया है, क्योंकि पता लग गया कि भी ये सच्चाई तो चीज़ दिखा। हरियाणा में सोशल मीडिया बैन किए जा रहे हैं, इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं, भी ताकि जो सच्चाई है वो पब्लिक तक ना पहुंच पाए। और जितने यहाँ गोदी मीडिया बैठे हैं उनको स्क्रिप्टिंग दे दी जाती है कि आपने यही बोलना है, यही भोंकना है। उनके जो प्रवक्ता बैठे हैं वही चीज़ करते हैं ये। हाँ, वही करते हैं। और दूसरा ये है कि चलो इन्होंने नेट बंद कर रखा है 3 दिन से हरियाणा में। टिकैत साहब एक बार भावुक हुए थे, उस टाइम बंद होने के बावजूद पूरा हरियाणा वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे उमड़ आया था, आ गया था। और अब जो है ना यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे गए हुए हैं लोग। चाहे इंटरनेट बंद कर दें, उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों की भावनाएं जुड़ चुकी हैं इस आंदोलन के साथ, और सरकार को चाहिए कि भी ये जो है ना जितने भी जो कानून हैं ये वापस लेने चाहिए इनको, लोगों की भावनाओं को देखते हुए। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो पीसफुल आंदोलन चला उसका काउंटर पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग। काउंटर पॉलिटिक्स मतलब उसके पैरेलल दूसरे अपने लोग जो है ना मतलब घुसा रहे हैं। जो आगे आंदोलन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी वीडियो फोटोग्राफ सामने आ रहे हैं, दिखा रहे हो कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ फोटो। अभी जो परसों जो इस बॉर्डर पे हुआ है, जो पहले वाला बॉर्डर है सिंघू बॉर्डर, उसमें भी बीजेपी के लोग निकले, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और दूसरा ये है कि वो बीजेपी के जो है ना मतलब किराए के आदमी थे, उनको पुलिस ने कह रखा था तुम जो है ना पत्थरबाजी करना, और मीडिया में ये दिखा दिया भाई वहाँ के लोकल आदमी थे। लोकल नहीं थे वो तो भाड़े के आदमी थे सारे। लोकल आदमी वो किसान ही आसपास में बैठे हैं, लोकल का तो वैसे बदनाम किया जा रहा है। वहाँ का कोई लोकल जो है ना किसानों के खिलाफ नहीं है। 100 आदमी थे मुश्किल से, 100 आदमियों को भाड़े पे जो है ना ये रैली में भी भाड़े पे लेके जाते हैं और वैसे ही भाड़े पे लेके जाते हैं। बिल्कुल। ये इस साइड आपको तस्वीरें दिखा दें, पूरा का पूरा परिवार है, जिसको ये कह रहे हैं कि किसानों के पास महंगी गाड़ी नहीं है, वो महंगी गाड़ी देख लें। तो बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पूरा का पूरा परिवार जो है इस समय दिल्ली जा रहा है, तो इनसे अब बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बाबू जी का ले ले इंटरव्यू है ना। बाबू जी एक ही सवाल आपसे। हाँ जी, हाँ जी। कह रहे थे कि हरियाणा वाले जो है ना, हरियाणा वाले आंदोलन खराब करते हैं, पंजाब वाले जो आंदोलन खराब करवा रहे हैं। अभी वीडियो निकाल के दिखा भी रहे थे, लेकिन उसके बाद असलियत सारी सामने आ गई कि छोटा भाई बड़ा भाई है। आपको क्या लगता है कि देश की मीडिया जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रही है? गोदी मीडिया बिल्कुल बिल्कुल मोदी मीडिया बेवकूफ़ बना रही है, 100% बेवकूफ़ बना रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हरियाणा पंजाब दोनों भाई भाई हैं, इनका प्यार पैसे पहले था, ये भी ऐसे ही बना रहेगा। सरकार कुछ भी कर ले, इसके बहकाव में नहीं आना हमने। कल प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि एक फ़ोन कॉल्स पे हूँ मैं, एक फ़ोन कॉल पे सारा कर दूंगा, लेकिन सामने कुछ आया नहीं रहा ना। 3 महीने से तब तक आया नहीं सामने, वो 5 किलोमीटर दूर पे बैठा है धरने से, आज तक आया नहीं। उनको भेज देता है जिनके हाथ में पावर नहीं कुछ भी। तोमर साहब जाओ जी, पीयूष गोयल का अब तक खेती कैसी होती है, गेहूँ कहाँ लगते हैं, जीरी कहाँ लगती है, पता है पीयूष गोयल को आज तक? वो क्या फैसला करेगा किसानों के? ये बिल्कुल गलत है। आप कहाँ से हैं? गरोंडा से हैं। तो आप जा रहे हैं वहाँ? हाँ जा रहे हैं, बिल्कुल वो वहीं रहेंगे, सारा परिवार अपना है, सारे वहीं रहे। 3 साल तक आप जैसे वापस लेते वहीं रहेंगे। पूरे वर्ल्ड में जैसे इंडिया का नाम हुआ था, हर जगह जाके मोदी मोदी मोदी, आपको लगता है कि साख पे बट्टा लगा है इस सारे आंदोलन को देखते? देखो ऑब्वियसली जैसा मोदी से एक्सपेक्ट किया था सबने, उसके अकॉर्डिंग देखो अगर कोई रीज़न है मोदी का कि मैं नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट उसको पब्लिक के आके सामने आके बोलना तो चाहिए ना कि ये रीज़न है, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ तो उनका होगा। मतलब मीडिया में वैसे हर चीज़ के लिए मोदी आ जाता है, बट इस चीज़ के लिए कभी ऐसा नहीं है कि अभी तक आके लोगों को बताए कि रीज़न क्या है ये जो मैंने लागू किया है किसान, तो उसको कुछ तो क्लैरिफाई करना चाहिए ना मोदी को। कितना पढ़े आप? फिजिक्स डॉक्टरेट है। आपको लगता है कि सरकार फंसी हुई है? क्योंकि अडानी अंबानी का जो बार बार नाम सामने आता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे अंदर खाते साइन होंगे कि सरकार बिल वापस लेती है तब फंस गई, ना लेती है तब फंस गई? देखो सरकार को बनाता कौन है? बनाती तो पब्लिक ही है ना, ठीक है। और अगर ये पब्लिक के लिए है चीज़, तो सरकार को पब्लिक का साथ देना चाहिए ना। पब्लिक ही तो सरकार को बनाती है, तो ये कोई बात नहीं हुई ना कि आप कुछ लोगों के लिए पूरे के पूरे अपने देश को सेक्रीफाइस करा रहे हो। ये तो बात मोदी की गलत है ना। जैसे इंटरनेशनल लेवल तक हमारा सिर ऊंचा हुआ था, अब वहाँ पर बच्चे वहाँ पर भी सारी मोदी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ मूवमेंट चल पड़ी। हाँ, एक बात है, देखो मोदी ने एक टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे हमें ये दिखाया था कि एवरीबॉडी नोज के भाई मोदी यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और अब जो ये वाला चीज़ है, इसने मोदी को क्या कर दिया, एकदम ही ऐसा कर दिया कि पूरे देश के लिए कुछ नहीं रहा। मोदी अपने आप में एक आइडेंटिटी हो गया। तो जी सर मैं गरोंडा से डॉक्टर अमित फौर जी। डॉक्टर साहब मूवमेंट जी है हूँ फिर आगे बढ़ रही है 26 तरीक तो सर वैसे हिंदू ही हूँ,
सिक्खी आज मैंने पकड़ी पकड़ी पाई है। मैं पाई है। मैं अपने बच्चों समेत सारा परिवार, माँ बहन सिस्टर सब जा रहे हैं दिल्ली, हम वहाँ सिंधु बॉर्डर पे। अब बताइए सर, आप क्या पूछ रहे थे? मतलब एक धार्मिक रंग देने की गई थी सारी उस पर 26 तारीख को जो प्लान किया गया था। जिन्होंने कुछ करना तो वो 2 महीने से लोग बैठे हुए थे, किसान बैठे थे। लगभग 67वां दिन हो गया है बैठे। अगर उनको कुछ करना ही था, ये तो सरकार एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। कभी जैसे कल परसों गाजीपुर बॉर्डर पे उन्होंने, जब बहुत थोड़े आदमी रह गए थे, बेसिकली सरकार का एक टारगेट था कि वो पंजाब वाले जो हमारे सिख भाइयों को, उनको किसी तरह टारगेट करके अलग कर दे। जो आज तक बीजेपी का एक हमेशा एक वो रहा है कि इनको बांटो और राज करो। जहां उनको जाट दिखे वहां जाट नॉन जाट कर देते हैं, जहां हिंदू मुस्लिम दिखे हिंदू मुस्लिम। पर इस बार उनको दिखा भाई ये सिख साहब आ गए, अब ये सिखों को कैसे अलग करो। उन्हें पता था, बट नहीं, पूरा हरियाणा डट के खड़ा है सिखों के साथ, पंजाब के साथ, उनका छोटा भाई बन के, हिंदू सिख भाई भाई। आप भी जा रहे हैं? ना जी, पानीपत से ही हूँ मैं, एडवोकेट हूँ। दिल्ली जा रहे हैं विद बच्चों के, सारे छोटे छोटे बच्चे साथ जा रहे हैं। और अभी हम उनको मतलब कि देखो, सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। आज झुके, 10 दिन के बाद झुके, 20 दिन के बाद सरकार को अल्टीमेटली झुकना पड़ेगा। क्योंकि देखो, ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, पूरे स्टेट की, पूरे देश की एक लहर है कि भाई जो ये 3 अध्यादेश आए, इसके बारे में जब तक किसी पूरे भारत में इस तरह का कोई आंदोलन नहीं चला कि नए अध्यादेश लेके आए, या तो पूरे देश में कोई मूवमेंट चली हो कि भाई कानून बदलना चाहिए, पूरे देश में कहीं कोई मूवमेंट इस तरह की नहीं चली जिससे कि ये लगा हो कि भाई ये कानून बनना चाहिए। जबकि इस तरह की कोई मूवमेंट ना होने के बावजूद भी मोदी ने ये कानून बना दिए बगैर किसी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए। लोगों को, किसानों को तो कम से कम इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। किसी भी किसान से पूछा नहीं, किसी से बात नहीं करी, किसी को पता नहीं है क्योंकि भाई क्या हम करने जा रहे हैं क्या नहीं। क्योंकि डिबेट होनी चाहिए थी, चाहे वो पार्लियामेंट में डिबेट होती, चाहे वो बाहर डिबेट होती। कानून में डिबेट होनी बहुत जरूरी है। बगैर डिबेट करे इन्होंने अपनी मर्जी से 3 अध्यादेश ले आके रख दिए, लोगों पे थोप दिए। बच्चों को दिखाने जा रहे हैं कि कैसा मूवमेंट है। ये तो जिंदगी में उन बच्चों को देखने चाहिए किस तरह के लोग संघर्ष करे। पिछले 70 दिन से लोग वहाँ है ना, अपनी बीवी बच्चों के साथ रह रही। कितनी ठंड थी। मोदी को ये लगता था कि लोग अल्टीमेटली लोग छोड़ के चले जाएंगे, फिर भी हमारे भाइयों ने इतना वहाँ पे डटे रहे और ये कहा कि जब तक 3 अध्यादेश वापिस नहीं होंगे हम अपने घर नहीं जाएंगे। लेकिन अब ये भी आप देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा का जो भाईचारा मजबूत हुआ है, जिस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश 26 तारीख के बाद ये कोशिशें चल रही थी। बिल्कुल कोशिश करी गई थी कि भाई ये भाईचारा टूट जाए किसी न किसी तरह से, पर इस जो उनकी सोच थी वो सोच वो कामयाब नहीं हो पाए। आज की डेट में भाईचारा बड़ा है। आप भी देख रहे हो कि अब तो हरियाणा पूरा सारी खाप आ गई है, गांव-गांव के अंदर मूवमेंट शुरू हो गई है। ये अभी कोई एक बरादरी की बात नहीं, अब 36 बरादरी का नारा ये है कि भाई ये 3 अध्यादेश वापिस होने चाहिए। कितना है भाजी? ਅਸੀਂ ਸਫੀਦੋਂ ਜੀਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਿਖਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਆਹ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਮੈਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਿਖਰਾਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਕੁਝ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਆਵੇਗੀ, ਵਧੇਗਾ घटेगा नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन बच्चों को इसलिए वहाँ ले जाया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाए कि वहाँ पर क्या मूवमेंट है, कहाँ इतने 2 महीने से जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर पड़े उनको दिखाने के लिए परिवार के परिवार जो है वहाँ पर जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रालियाँ नहीं, अपनी निजी गाड़ियों में लोग पहुँच रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वैसे पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।
पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किश्त बिग ब्रांड्स पर, ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be